The fittest organisms are better suited for survival in their environment. Consequence, sorry, CONSEQUENCES. Consequence, paridam. Parts of speech, noun. Synonyms, outcomes, results, and ramifications. Important word. Ramifications. 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 Now, antonyms of the word causes, reasons, and antecedents. Now, use in sentence, be mindful of your actions as they may have serious consequences. Experiences, EXPERIENCES. Experiences, अनुभव. Parts of speech, noun. Synonyms of the word, encounters, events, and episodes. Antonyms of the word, inexperience, ignorance, and unfamiliarity. And use in sentence, traveling provides a wealth of diverse experiences. Now, next word, reactivity. Reactivity, REACTIVITY. Reactivity, part of speech, noun. Hindi meaning, प्रतिक्रियाशीलता. Synonyms of the word, responsiveness, sensitivity, quickness. Antonyms of the word, indifference, unresponsiveness, unresponsiveness, and sluggishness. Now use in sentence, the reactivity of the emergency response team saved lives. Next, decisively. DECISIVELY. Decisively, parts of speech, adverb, and meaning, Hindi meaning, निर्णायक. Synonyms of the word, resolutely and conclusively and definitively. Antonyms of the word, hesitantly and indecisively and uncertainly. Now use in sentence. She acted decisively in a crisis, ensuring a swift resolution. Next word, aggressive. AGGRESSIVE. Aggressive, part of speech, adjective, एंड प्रवृत्तिशील या एग्रेसिव मीन्स होता है, आप समझते हैं, ये जो एग्रेसिव दिमाग का होता है, थोड़ा सा टेम्पर हाई रहता है. ओके, नाउ सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, हॉस्टाइल, असर्टिव एंड फार्स. इंपॉर्टेंट वर्ड, FIERC. नाउ एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड, जेंटल, पैसिव, calm. Use in sentence, the team adopted an aggressive strategy to win the game. Now next word, innovative. INNOVATIVE. Innovative, parts of speech, adjective, meaning navachar. Synonyms of the word, creative, inventive, original. Antonyms of the word, conventional, traditional, and unimaginative. Use in sentence, the company is known for its innovative approach to technology. Now next, prefrontal cortex. This word is related to part of body, like माइंड्स ऑफ फ्रंट लेयर. ओके, मीन्स आप इसको समझिए, फर्स्ट वी विल सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, स्पेसिफिकली अ पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये क्या होता है? ये ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि एक अग्रभाग होता है, मस्तिष्क का वाय परत होता है, और वो आगे वाला भाग को बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ओके, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, फ्रंटल लोब एंड फ्रंटल cortex. Antonyms. Okay, here is no any antonyms. Use in sentence. Decisions making is associated with the prefrontal cortex of the brain. Next word, primitive. Well known, PRI, MITIV, primitive. Parts of speech, adjective, mean, prachin. Synonyms of the word, ancient, basic, and primeval. Antonyms of the word, modern, advanced, and developed. Use in sentence, the primitive tools of early humans were simple but effective. Next,
pivotal, pivotal, pivotal. How can you learn with the mnemonics? P plus vote. ओके, वोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी का जो मेन पार्ट अगर देखा जाए तो वोट है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने प्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। पिवोटल मीन्स वोट, मीन्स मेन, मीन्स मुख्य। ओके, क्रूसियल, एसेंशियल फॉर अस। वोटिंग क्या होता है हमारे लिए? क्रूसियल होता है ना, एसेंशियल होता है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिवोटल vote. Okay, pivotal vote is pivotal for us. Okay, next, synonyms of the word means parts of speech. Adjective, pivotal, vote is pivotal for us. Okay, adjective. And the meaning of mukhya, and synonyms of the word crucial, essential, and central. Now antonyms of the word insignificant, unimportant, and peripheral. Peripheral is also important word. Now, use in sentence. The discovery was pivotal in advancing scientific understanding. Now, next word. Exploration. 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 Well known. Parts of speech noun. अन्वेषण खोज. Invest, investigating. Okay. Now, synonyms of the word investigation, discovery, and inquiry. Synonyms of the word ignorance, neglect, and avoidance. Use in sentence. Space exploration has led a numerous scientific breakthroughs. Okay, breakthroughs. Next word, significant, well known. SIGNIFICANT. Significant, adjective. Hindi meaning महत्वपूर्ण. Synonyms of the word important, meaningful, and substantial. Synonyms of the word insignificant, minor, and trivial. Use in sentence. The research findings were. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, use in sentence. The research findings were significant in shaping future studies. हार्श पेरेंटिंग, हार्श वेल नोन, हार्श बहुत ही ज्यादा कठोर होता है। पेरेंटिंग, पेरेंट से बना है। ओके, पेरेंटिंग, हार्श पेरेंटिंग मीन्स होता है जो कठोर माँ या बाप होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। इट इज अ नाउन फ्रेज, हार्श पेरेंटिंग। ओके, हिंदी मीनिंग कठोर मातृ पितृत्व। ओके, no synonyms: strict parenting and authoritarian parenting. Antonyms of the word gentle parenting and nourishing parenting. Use in sentence. Use in sentence. Harsh parenting can have detrimental effects on a child development. Next, aggression. Well known. AGGRESSION. Aggression. Parts of speech noun meaning pravritti. Synonyms of the word hostility and assertiveness and combativeness. Now, antonyms of the word pacifism, passivity, and gentleness. Use in sentence. The coach dis- discouraged aggression on the field, promoting fair play. Anxiety. 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 Synonyms of the, parts of speech. Noun meaning chinta, well known. Synonyms of the word worry, tension, and apprehension. Antonyms of the word calmness, serenity, and relaxation. Use in sentence. High stress situations can lead it to increased anxiety. Now next, fear. PEER. Fear. How can you learn with mnemonics? Dear. Okay. जो आपका डियर होगा वही तो आपका पियर होगा। क्यों? जो आपका डियर होगा, जो आपका प्यारा होगा वही तो आपका पियर होगा। पियर मीन्स साथी। ओके, नाउ parts of speech, noun, and the meaning of the word pair, साथी. Yes, anyone? Do you want to say something? कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? बार बार माइक आप लोग ऑन कर रहे हैं। ओके,
Now synonyms of the word colleague, equal, companion. Antonyms of the word superior, junior, stranger. Use in sentence peer support is crucial for personal and professional development. Now structure. STRUCTURE structure. Parts of speech noun. Hindi meaning संरचना. Now synonyms of the word framework, organization, composition. Antonyms of the word chaos, disorder, and disarray. Important word DISARRAY. Use in sentence the building's structure was designed for maximum stability. Next word autonomy, well known, swasashan. AUTONOMY. Autonomy, parts of speech noun. Hindi meaning स्वायत्तता या स्वशासन. Now, synonyms of the word independence, self-governance, and freedom. Antonyms of the word dependence, subordination, and control. Use in sentence the country fought for autonomy and self-rule. Now, next word burn out. Burn out. Break this word two part. BURN burn प्लस OUT आउट. जब बर्न आउट हो जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाते हैं तो बर्न आउट हो जाते हैं मतलब थक जाते हैं. ओके बर्न आउट मीन्स थकान. ओके break this word in two part and after that you can learn very easily. Parts of speech noun burnout noun Hindi meaning थकान burnout exhaust होना. Okay synonyms of the word exhaustion, exhaustion, fatigue important word या फिर TIGUE fatigue, overwork. Antonyms of the word rest, refreshment, relaxation. Use in sentence long hours and constant pressure can lead to burnout in the workplace. Now next word. Today's last word. Yes, vulnerability. 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 Parts of speech. Noun. It's a very easy. Means नाजुक बहुत ही ज्यादा नाजुक बोलते हैं ना नाजुक के लिए वर्ड यूज किया जाता है. ओके एंड भ्रांति पूर्णता मीनिंग ऑफ हिंदी. नो सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ससेप्टिबिलिटी एंड फ्रेजाइलिटी फ्रेजाइलिटी बनी है. सेंसिटिविटी. एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड resilience, invulnerability, strength. Use in sentence showing vulnerability can strengthen personal connections. Yes. Now, do you have any problem? Then we discuss here. Related any word? Yes. Thank you. No problem, ma'am. Thank you. Most welcome, everyone. Am I audible to all of you? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. मैडम जो है अभी पढ़ा रही थी आप लोगों को ओके हो सकता है जो पहली बार जुड़े हैं या वो न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस नहीं जानते हों उनको नहीं समझ में आ रहा हो. ये जो है आपके पैसेज करने में न्यूज़पेपर की वोकैब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है. इसके लिए जो है बहुत सारे ग्रामरियन जो क्लास ले रहे हैं तो पेड क्लासेस उनकी 2000 3000 4000 इस तरह के. इवन यहाँ तक कि हिंदुस्तान टाइम का या द हिंदू का अगर प्रीमियम आप लेना चाहें पेड इनका तो इनका भी जो है 2800-2900 रुपये का सब्सक्रिप्शन है इनका. वहाँ से जो है एक एडिटोरियल अब आप अगर इसको गंभीरता से न ले तो क्या करेंगे आप. एक पेपर लीजिए 15-20 रुपये का जो भी देगा वो और फिर उसको पढ़ेंगे फिर उसकी मीनिंग इतनी हाईलाइट करेंगे फिर गूगल करेंगे गूगल से उसका जो है ट्रांसलेट में मीनिंग निकालेंगे फिर उसके सिनोनिम ढूंढेंगे फिर एंटोनिम ढूंढेंगे फिर उसका सेंटेंस में यूज करेंगे. एक लगभग 20 मीनिंग निकालने के लिए आपको कम से कम 2 से ढाई घंटे खर्च करने पड़ेंगे. वो चीज़ें जो है यहाँ बड़े आराम से मैडम आपको बता दे रहे हैं. वो अलग की बात है कि इसकी वैल्यू कौन समझता है किस हद तक समझता है. जो वैल्यू इसकी समझते हैं बहुत अच्छे से ले रहे होंगे. बाकी राम कथा सुन करके आगे जन्म में भगवान मुझे अच्छा बनायो ऐसी कामना के साथ सेशन पास कर देंगे.
हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे ग्रामर में? टेंसेस, है ना? टेंसेस पढ़ रहे थे। यस सर फ्यूचर है आज। आज जो है हम लोगों को प्रेजेंट और पास्ट पढ़ चुके हैं, फ्यूचर टेंस जो है आज हम लोगों को पढ़ना है। आज फ्यूचर टेंस आपका जो सेशन होने वाला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। और जैसा कि हम पिछले सेशंस में कर चुके हैं कि हम ज़्यादा बेसिक की चीज़ें लेके चल नहीं रहे हैं। बेसिक जो चीज़ें आपको पता हैं, हम बस उतनी ही चीज़ें लेके चल रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन बनता है। बाकी स्ट्रक्चर आप सब लोगों को पता है इसका, सारी चीज़ों का, है ना? स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस सर दिख रही है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस सिंपल या इंडेफिनिट कह सकते हैं। द सिंपल फ्यूचर रिफर टू अ टाइम लेटर देन नाउ। ये टेंस जो है उस समय को डिनोट करता है, उस समय को रेफर करता है जो अब से बाद में समय आने वाला है। अब के बाद में समय जो आने वाला है उसके में जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं उन सब चीज़ों को हम इस टेंस में पढ़ेंगे। एंड एक्सप्रेस फैक्ट आर सर्टेनिटी, या तो भविष्य के कुछ फैक्ट बताएगा या फिर वहाँ की निश्चितता को बताएगा। इन दिस केस देयर इज नो एटीट्यूड, द सिंपल फ्यूचर इज यूज्ड लाइक दैट। कैसे कैसे? टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट, भविष्य की कुछ बात बताने के लिए, लाइक भविष्यवाणी करने के लिए। आई विल इट विल रेन टुमारो, कल जो है बारिश होगी। कल की बात अभी बताया जा रहा है, जैसे कोई मौसम विभाग है वो बता रहा है। टू एक्सप्रेस द स्पॉन्टेनियस डिसीजन, सहज क्रियाएं जो मतलब सहज वार्ता जब हो जाती है हमारी किसी से, ऑटोमेटिक चीजें जो है निकल जाती है। जैसे कि जो है आप कोई चीज खरीद रहे हैं, आप गए सिनेमा हॉल में टिकट खरीद रहे हैं। आई विल पे फॉर द टिकट बाई कैश, मैं जो है टिकट के लिए पैसा कैश में पे करूँ। अब ये बिल लगा जरूर है यहाँ, लेकिन भविष्य की बात नहीं है तो तत्काल की ही, लेकिन ये ऑटोमेटिक चीजें हमसे निकल जाती हैं। अरे रहने तो मैं पे कर दूंगा। जैसे आप कहीं खाने पीने के दोस्त के साथ चले गए तो एक जब ही अपना पर्स निकालने लगता है, दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं पे कर दूंगा। दूंगा का जो सेंस आता है वहां पर बिल ही लगेगा। आई विल पे फॉर दिस, आई विल पे फॉर दिस। तो ये जो बिल लग रहा है ये भविष्य को नहीं ले जा रहा है, ये आपकी उस समय की सहज एक्टिविटीज को जो है शो करता है। तो ऐसी स्थिति में जो है हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पहली चीज क्या जान ली आपने? कोई फोरटेल कर रहा हो, प्रेडिक्टेशन हो, वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग। और दूसरा, जब कोई हमारी सहज वार्ता या हमारे सहज चीजें मुंह से निकल जाती हैं ऐसी स्थिति में। दूसरा है एक्सप्रेस विलिंगनेस, जैसे कि आई विल डू द ग्रोसरी शॉपिंग, ही विल कैरी आउट बुक फॉर यू, अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कुछ कहने के लिए। इन द निगेटिव फॉर्म, टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस, जैसे कि द बॉय वॉन्ट ईट दिस सूप, द बॉय वॉन्ट ईट दिस सूप, बच्चा जो है ये खाना खाएगा नहीं, ये चीज खाना चाह नहीं रहा, ये कहना चाह रहे हैं आप, लेकिन कह देते हैं उसको विल नॉट ईट दिस, वो खाएगा नहीं। जैसे किसी छोटे बच्चे होते हैं तो घर में कुछ देते हैं, दादी या किसी ने दे दिया, चलो ये खा लो, कहते नहीं वो खाएगा नहीं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो भविष्य में खाएगा नहीं, वो अभी की बात है, लेकिन क्या है ये अनिच्छा की बात करी जा रही है। कैसी अनिच्छा की बात करी जा रही है। अच्छा, ये चीजें जो है आपको इसलिए सारी चीजें जानना जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में ये पूछ लेगा आपसे कि विलिंगनेस किस में बताया जाएगा, अनविलिंगनेस किस में होगा। जैसे ऊपर वाला भी आपने जो है एक विलिंगनेस की बात करी या अनविलिंगनेस की बात करी, आपसे पूछ लिया गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है विलिंगनेस की बात की जाती है कि अनविलिंगनेस की बात की जाती है, बोथ की जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए ये चीजें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अगला है विथ आई
इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म यूजिंग शैल। जनरली हम ये कॉन्सेप्ट जानते ही हैं। आज फर्स्ट पर्सन के साथ जो हम शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि वी है, वी के साथ भी हम पहले से जानते हैं कि हम शैल का प्रयोग करते हैं। शैल वी गो टू फॉर द मूवी टू नाइट। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी जानते हैं, आई के साथ में शैल और बी के साथ में शैल तो प्रयोग होता है, लेकिन अगर इनका अपोजिट अगर कर दिया जाए तो नेसेसिटी जो है वहां पर बाध्यता का बोध होने लगता है। फर्स्ट पर्सन के साथ अगर विल का प्रयोग कर दिया जाए, बाकी के साथ शैल कर दिया जाए। हालांकि अभी आगे और पढ़ेंगे हम कि जो मॉडर्न ग्रामरियन है तो ये विल और शैल का डिफरेंसेस इन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी जो हमारा स्ट्रक्चर है ग्रामर का हम उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ये जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं ये नोट्स टोटली जो है बेस्ड ऑन ऑथेंटिक बुक्स है। जिन बुक्स को आयोग कंसीडर करता है, आयोग उनका सोर्स भी मानता है। यहाँ इस नोट्स से अगर कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कराते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में सॉल्व कराते हैं, तो वहां पर जो है आप इसका सोर्स भी दे सकते हो। मैं बता दूंगा कि किस बुक से है, किस पेज नंबर से ये रूल हमने उठाया है। और जनरली बेस्ड ये एनसीईआरटी का और रेन मार्टिन से है, जहाँ का सोर्स जो है जनरली कोई भी बोर्ड हो कंसीडर करता ही करता है। तो नो डाउट कि ये जो है कोई किसी की इच्छा नहीं है, किसी की अपने स्तर से बनाया हुआ नोट से नहीं है, ये किसी न किसी जो है ऑथेंटिक बुक से चीजें जो है मैटर उठाया गया है। जैसे विथ यू टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर के सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू विल डू एग्जैक्टली एज आई से, तुम वैसा ही करो जैसा कि मैं कहता हूं। तुम वैसा ही, तुम्हें वैसा ही करोगे, तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहता हूं। यू विल डू एग्जैक्टली एज आई से, तो यहाँ पर जो है ऑर्डर का भी बोध हो रहा है। विथ यू इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म टू गिव एन इन्विटेशन, जैसे कि विल यू कम टू द मॉल विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो मॉल में। तो यहाँ पर एक हम एज ए इन्विटेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो ये 9 कंडीशंस ऐसी हैं जहां पर हम जनरली फ्यूचर इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। इनमें से कोई 3-4 जो है आप में से आपको देगा, 3 देगा, उनमें से कोई एक अलग से फीचर दे देगा, आपको पूछेगा कि कौन सा आड है, कौन सा इसमें से नहीं है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। हम चीजें बहुत आसानी से करते हुए चल रहे हैं, फिर भी किसी साथी को लगता है कि यहाँ पे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो अपना बोल सकता है माइक ऑन करके। अगर दोबारा से चीजें रिवाइज करना है तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा, वहां पर आप देख सकते हैं इसको। भले लाइक चैनल को न करिएगा, सब्सक्राइब न करिएगा, लेकिन अपना फायदा उठाने के लिए आप उसे देख सकते हैं, है ना। नोट देख लेते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश विल इज प्रेफर्ड टू शैल, वही जो चीज हम पहले बता रहे हैं, मॉडर्न जो है ग्रामरियन विल और शैल को इक्वली मान ले रहे हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात आएगी तो हम जो पहले से पढ़ते आए हैं फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और बाकी के साथ विल, तो उसी को ही हम फॉलो करना चाहिए। कुछ अलग से फीचर यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट कंट्रोल, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट एक्सप्रेस द फ्यूचर एज फैक्ट, फ्यूचर में फैक्ट की तरह होता है। जैसे कि आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे, मैं जो है नेक्स्ट सैटरडे को 20 का हो जाऊंगा। तो ये अनकंट्रोल्ड है। ऐसी चीजें जो है हम एक्सप्रेस जब करते हैं तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल सेम आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ये उठा के रखे हुए हैं, रेन मार्टिन के सेम एग्जाम्पल हैं, उठा के रखे हैं। We use this tense to talk about what we think or believe will happen in future. जैसे कि I think पाकिस्तान will win the match, मैं सोचता हूं कि ऐसा जो है घटित होगा। अगर हम ऐसी सोच बनाए रखे हैं पाकिस्तान जीतेगा, तो फिर उसे भी हम फ्यूचर इंडिफिनिट में हम यूज करते हैं। जैसे as in the above sentence we often use this tense with I think and I am sure। अगर ये चीजें आ जाएं, आई थिंक आ जाए, आई एम श्योर आ जाए, तो समझ लीजिएगा कि ये चीजें जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में जा रही हैं। जैसे आई एक्सेप्ट, आई बिलीव, प्रोबेबली, ये 2-3 चीजें हैं, सार्टिक के माध्यम से आप इन्हें याद कर सकते हैं कि ये अगर चीजें मिल जा रही हैं तो स्ट्रक्चर मान के चलिए फ्यूचर इंडिफिनिट में जाएगा, और वहां पर कंटिन्यूअस दिया हो, परफेक्ट दिया हो, या कोई दूसरा टेंस दिया हो,
वहां दे के आपको एरर जो है आपको बना के देगा, तो वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट ही होगा। आप एरर जो है वहां से अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। We can use this tense when we decided to do something at the time of speaking. जैसे it is raining, I will take an umbrella. It is raining, I will take an umbrella. तो ये जो है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में जा रहा है। फॉर्मेटिंग कैसे होती है? जनरली सब लोग जानते हैं, विल या शैल होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शैल होगा, और इसे नहीं दिया होने से आई विल गो, आई शैल गो। देखो ये दोनों चीजें जो है कंसीडर की जाती है, बट जो है हम शैल पे ज्यादा अच्छे से जाएंगे। निगेटिव फॉर्म आप जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, निगेटिव हो जाएगा। जनरली वेल नोन है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो ये स्ट्रक्चर हमने दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। सिंपल फ्यूचर। आगे कुछ देखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जो है कुछ पॉइंट्स हैं जहां से जो है कंफ्यूजन हमें क्रिएट होता है। अभी तक की जितनी चीजें देखी तो जनरली वेल नोन होती है और सबको लगभग पता होती है, लेकिन ये चीजें जो सेक्टर जहां पे हम एंट्री कर रहे हैं ये थोड़ा जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, जनरली गोइंग टू जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इस्तेमाल होता है। तो गोइंग टू का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो जो सेंस दे रहा है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस देता है। गोइंग टू होता तो प्रेजेंट में, लेकिन जो है वो सेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का देता है। आई एम गोइंग टू बाई अ कार, फ्यूचर का सेंस जो है ये दे रहा है। आपको क्वेश्चन में दे देगा यही टेंस गोइंग टू लगा कर, और आपसे पूछेगा ऊपर कि व्हिच सेंटेंस इज रिफर टू फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, ये टेंस होगा, ये सेंटेंस मतलब गोइंग टू दिया होगा एक ऑप्शन में, और लास्ट में नथिंग दिया होगा, नन ऑफ एबव होगा। तो आप तुरंत देखोगे भाई साहब फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो तो होती है विल और प्लस जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो किसी सेंटेंस में है ही नहीं, तो फिर नन ऑफ देम में चले जाते हैं, मामला गड़बड़ हो गया, क्योंकि गोइंग टू लगा है, सेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का देता है। ये पकड़ के आप रखेंगे दिमाग में। रिमेंबर, याद रखने वाली बात है दैट इफ द एक्शन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, यदि एक्शन ऑलरेडी डिसाइड है अपॉन द प्रिपरेशन हैव बीन मेड, वी शुड यूज गोइंग टू फॉर्म नॉट सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर सेंटेंस में अगर पहले से सेंटेंस वो जो है काम डिसाइड हो चुका है, जैसे माई फादर रिटायर्स ऑन, डेट आगे कोई दी हुई है 3 जून, इतने डेट आगे फ्यूचर की वो डेट दी हुई है, तो ये कोई फिक्स है पहले से, भाई वो रिटायर होंगे तो होंगे, किसी की शादी हो रही तो फिर होगी, वो फिक्स्ड प्लान है, तयशुदा है, तो वहां पर बिल का प्रयोग नहीं, आपको टेंस में बिल ही करके देगा और फिर वो दिक्कत का आपको पैदा कर देगा। ये सब कुछ तो सही है, इसमें तो नो एरर होना चाहिए, नीचे ऑप्शन दिया होगा नो एरर, आप तुरंत नो एरर लगा के आएंगे, साहब ये तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन वहां पर जो है आपको ध्यान देना होगा कि वो गोइंग टू सेंस देगा, ना कि जो है विल का सेंस देगा, बिल का इस्तेमाल वहां नहीं करेंगे। वी ऑल्सो यूज द गोइंग टू फ्रॉम, हम गोइंग टू की बात कर रहे हैं, गोइंग टू फ्रॉम टू टॉक अबाउट व्हाट सीम्स लाइकली और सर्टेन, निश्चितता की बात, जैसे व्हेन देयर इज समथिंग इन द प्रेजेंट व्हिच टेल अस अबाउट द फ्यूचर, जैसे इट इज गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है, लुक एट दोज क्लाउड्स, उन बादलों को देखो। इसको भी हम अगर इट इज गोइंग टू लगा हुआ है तो ये जो है नियर फ्यूचर में कोई चीज होने जा रही है, उसकी संभावना अभी दिख रही है, तो भी हम जो है गोइंग टू का काम करें। द गोइंग टू फ्रॉम मे आल्सो एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज ऑन द पॉइंट ऑफ हैपनिंग, जैसे लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट इज गोइंग टू लीव, चलो ट्रेन में चलें, ये जो है बिल्कुल जाने वाली है, तो ये बिल्कुल जाने वाली है, तो यहाँ पर भी हम इट विल गो नहीं करेंगे, इट्स गोइंग टू लीव ही अप्रोप्रिएट होगा। अब आता है दूसरा स्ट्रक्चर बी अबाउट टू। आपके सेंटेंस में बी अबाउट टू दिया होगा, और बी अबाउट टू दिया होगा तो फिर आप वो जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस देगा। कैसे? बी अबाउट टू प्लस बेस फॉर्म वर्ब की फॉर्म कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द
इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है। जैसे लेट्स गेट इनटू द ट्रेन, इट्स अबाउट टू लीव। यहाँ पर हम विल का सेंस दे रहा था, बिल्कुल चल देगी, जाने वाली है, गोइंग टू का सेंस दे रहा था। वहां पर हम अबाउट टू का यूज करके आगे काम चला देंगे। जैसे अगला सेंटेंस है एक, डोंट गो आउट नाउ, बाहर मत जाओ, वी आर अबाउट टू हैव लंच। अब जो है बिल्कुल हम लंच होने वाला है, बिल्कुल लंच होने वाला है, बाहर मत जाओ। ये सेंस फ्यूचर का दे रहा है। हम बता आपको इसलिए रहे हैं क्योंकि जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो सेंस आधारित बन रहा है। जब आप सेंस में स्ट्रक्चर पकड़ेंगे वहां पर बिल का और फर्स्ट फॉर्म का, तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन सेंस फ्यूचर का है, आपसे पूछ रहा है कि फ्यूचर इंडिकेटेड कौन सा सेंटेंस है, तो आपको ये चीजें पकड़ के बता देनी है। क्या क्या चीजें, एक तो गोइंग टू ऊपर वाला और दूसरा ये अबाउट टू का, ये भी फ्यूचर का सेंस देता है। दूसरा है एक पॉइंट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का हम कल भी बात करें कि एक ऐसा टाइप होता है जो फ्यूचर का सेंस देता है। फ्यूचर के लिए हम 3 प्रकार के टेंसेस को फाइंड आउट किए थे। पहला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी फ्यूचर का सेंस देता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी फ्यूचर का टेंस देता है। जैसे गोइंग टू आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, और सिंपल फ्यूचर तो है ही। तो 3 टेंस जो है आपके जो प्रेडिक्टेशन है फ्यूचर का, उस बारे में सेंस जो है ये देते हैं, जबकि ये तीनों टेंस अलग अलग के स्ट्रक्चर के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर ऑफिशियल प्रोग्राम एंड टाइम टेबल। जैसे द कॉलेज ओपन्स ऑन 23rd जून। कॉलेज ओपन्स, कॉलेज खुल रहा है या खुलेगा, इसका सेंस जो है कब निकलेगा, कॉलेज जो है 23rd जून को खुलेगा। बात भविष्य की है, लेकिन ये प्लान फिक्स है। देखो वहां भी गोइंग टू में भी हमने कहा था प्लान फिक्स है, लेकिन वो नियर फ्यूचर है, वो नियर फ्यूचर है। गोइंग टू में और इसमें फर्क बस इतना ही है कि जब बिल्कुल नियर फ्यूचर की बातचीत आएगी तो आप गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे, नियर फ्यूचर की। लेकिन जब फ्यूचर में थोड़ा डिस्टेंस होगी और फ्यूचर की बातचीत होगी लेकिन प्लान फिक्स होगा, तो जो है आप सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द फिल्म स्टार्ट एट 6:30 एंड फिनिशेस एट 9। सुन रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा कुछ, एम आई ऑडिबल, कनेक्ट है हम जी? सुन पा रहे हैं सर। चलिए धन्यवाद। नहीं बोल बीच बीच में बताते रहेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो पता चलता डिस्कनेक्ट हो गए हम तो फिर अकेले ही पढ़ डालेंगे। अगला है, सिंपल प्रेजेंट इज ऑफन यूज्ड फॉर फ्यूचर टाइम इन क्लास विथ इफ। अब कंडीशन सेंटेंस आप पढ़े होंगे, हम कंडीशन सेंटेंस का थोड़ा भी यहाँ पर आपको खुशबू दिलाए दे रहे हैं। जैसे विथ इफ, अनलेस, व्हेन, व्हाइल, as while, before, after, until, by the time, as soon as। The simple future tense is not used such this case। अगर ऐसी चीजें आ जाती हैं तो आपको सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करना है। बाय द टाइम तो पास्ट इंडेफिनिट ही लेता है। बाकी आप ये पहले से जानते हैं, कंडीशनल केस में जो है कोई भी विल, वुड जैसी क्रियाएं साथ में नहीं आती हैं, और ये कंडीशनल सेंटेंस में हम पढ़ चुके हैं, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो इसके बाद जो है हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आपको प्रश्न में ये सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम देगा, और ये प्रॉब्लम आपको कंडीशनल सेंटेंस में जनरली आपको ऐसी मिलती है। हाँ, ज्यादा डिटेल इसको जो है हम कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे, इफ, अनलेस और व्हेन वाले सेंटेंसेस में विल, शैल, शुड का इस्तेमाल कैसे करते नहीं। आगे है आपका, अब आते हैं हम दूसरे सेंटेंस में। अभी तक हम पढ़ रहे थे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर के कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस जितनी फैक्ट हमने पढ़े, इतने फैक्ट अगर आप दिमाग में अपने बना लेते तो ये चीज मान के चलिए, हमें कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर 99.9% नहीं आने वाला, क्योंकि जितने क्वेश्चन हमने जो है एनालिसिस करे अब तक के प्रीवियस ईयर के, सब लगभग यही बन जाते हैं। फिर बनते कहां से, तो रेन मार्टिन से बन जाते हैं क्वेश्चन,
या फिर जो है इंटर कॉलेज में जो एनसीईआरटी की बुक चलती है वहां से बन जाते हैं क्वेश्चन। सारे के सारे रूल्स जहां जहां से हमको मिल रहे थे ऑथेंटिक बुक से, वो उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। आपको 20 किताबें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ग्रैंड मार्टिन पढ़ेंगे तो भी आपको हमारा यहाँ से पॉइंट मिल जाएंगे, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी ये मिल जाएगा हमको, अगर आप एमसी ग्राहिल पढ़ लेंगे तो भी हमको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप जो है यूपी बोर्ड में एक ऑथेंटिक बुक चलती है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका भी हमने यहाँ पे सोर्स लिया है। तो ये सारा कुछ जो है हमने यहाँ पे बना दिया है, तो इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चाहें तो इसको दिमाग में बड़े अच्छे से बैठा सकते हैं। अब हम कर चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंपोजिशन एंड ग्रामर है सर? नहीं कंपोजिशन नहीं, वो जिस अरे नहीं यार, उसमें वो आंसर नहीं दे रखा, उन्होंने साल वाल नहीं कराया है, एक्सरसाइज कराई है लेकिन वो साल नहीं दिया है, नहीं याद आ रहा था जी। कंपोजिशन का तो है मैटर इसमें। We use the continuous tense when we talk about something we have planned to do in the future. I'm going to cinema. I'm going to cinema. नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये भी वही चल रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, भूल गए। ये भी जो है वही सेंस दे रहा है, वही चीज यहाँ पे दी गई है, एक्स्ट्रा हमने ऐड कर दिया था इसको। अब आता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। Future continuous is used to refer to an unfinished action. एक मिनट जरा वेट करें। जी, बुक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा था, एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश, एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश, समझ रहे हैं आप? वो तो है हमारी प्रकाशित है सर, हाँ प्रकाशन की मतलब हाँ मित्तल एक्सीलेंट भी प्रकाशन जनरली मतलब। जनरली कोचिंग वाले एक्सीलेंट प्रेफर करते हैं कंपटीशन के लिए, और है भी उसमें कुछ मैटर ऐसा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जितना चीजें महत्वपूर्ण है हमने उसमें से निकाल के इसमें शामिल कर लिया। एक्सीलेंट, ग्रैंड मार्टिन, एमसी ग्राहिल और ऑक्सफोर्ड का भी कुछ मैटर हमने ले लिया यहाँ से। सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, देखते हैं क्या है आगे। फ्यूचर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग अपना अपना विवेक तो लगा ही दें, कोई ऐसा तो है नहीं यहाँ पे बिगिनर है, सब लेवल के एस्पिरेंट हैं। द फ्यूचर कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू रिफर टू एन अनफिनिश्ड एक्शन और इवेंट दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम लेटर दैट नाउ। ये कह रहा है कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उस समय के लिए हम इसका यूज करते हैं जो भविष्य में काम प्रोग्रेस पर होगा। जैसे दिस टाइम नेक्स्ट वीक, इस समय अगले महीने, वीक आई विल बी वोटिंग, मैं वोटिंग कर रहा हूँ इन चेन्नई। दूसरा, फॉर प्रोडक्टिंग आर गेसिंग अबाउट फ्यूचर इवेंट, जैसे कि ये प्रोडक्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि ही विल बी कमिंग टू द मीटिंग आई एक्सपेक्ट, वो जो है आ रहा होगा, मैं उससे उम्मीद करता हूँ। इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म द फ्यूचर कंटिन्यूअस कैन बी यूज्ड टू आस्क पोलाइटली ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर, जैसे विल यू ब्रिंग योर फ्रेंड, will you be bringing your friend to the party tonight, कि अपने साथ में अपने दोस्त को भी ला रहे हो आज की पार्टी में। to refer to continuous events that we expect to happen in the future, जैसे I shall be seeing Raj at the conference next week। ये सारे जो पॉइंट्स हम बता रहे हैं, इन आधारों पर जो है हम कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है in combination with still to refer to events that are already happening now that we expect to continue sometimes into the future, जो प्रेजेंट में चल रहा है और भविष्य में भी हम उम्मीद करते हैं कि वो चलेगा। जैसे इन एन आवर आई शैल स्टिल बी वॉशिंग माय क्लॉथ्स, अभी कर रहे हैं भाई साहब, अगला भी कुछ इरादा यही है, टुमारो ही विल स्टिल बी सफरिंग फ्रॉम हिज पेन।
नेक्स्ट ईयर विल सी स्टिल बी वियरिंग द रिंग। फॉर्मेटिंग ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट होगा, विल होगा, प्लस बी होगा और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। ये स्ट्रक्चर इसका होगा। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रिफर्स टू अ कंप्लीट एक्शन इन द फ्यूचर। ये जो कंप्लीट एक्शन फ्यूचर का बता रहा है। जैसे व्हेन वी यूज दिस टेंस वी आर प्रोजेक्टिंग आवरसेल्फ फॉरवर्ड इनटू द फ्यूचर and looking back at the action that will be completed sometimes later than now। हम इस टेंस में अपने आप को जो है भविष्य के समय में रिप्रेजेंट करते हैं, वहां के एक्शन को पूर्ण होने की बात को करते हैं या पूर्णता का जो है इस टेंस से बोध होता है, जो कि अब से बाद का समय वो निर्धारित होता है। जैसे कि आई विल हैव बीन बिफोर फॉर 6 months ऑन जून 23rd। जनरली इसका स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बना रहता है, हम उसी से पकड़ लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, विल हैव बीन होगा और फॉर 6 months मतलब थर्ड फॉर्म आ जाएगी और आगे जो है एक टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया होगा। जैसे यू विल हैव फिनिश्ड योर रिपोर्ट बाय दिस नेक्स्ट वीक, वोंट दे हैव अराइव बाय 5 PM। ये एक जनरल सेंस के स्ट्रक्चर हैं, इन्हीं से हम परफेक्ट को पकड़ लेते हैं। The future perfect is composed of 2 elements। जैसे simple future verb to have, will have and past participle of may। जैसे स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, सब्जेक्ट है will have, past participle of the main verb जैसे he will have finished। नेक्स्ट जो टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ना फ्यूचर परफेक्ट सिंपल का मतलब है साधारणता को छूट गया है, जनरली का सेंस। दिस फॉर्म इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट आवरसेल्फ फॉरवर्ड इन द टाइम एंड टू लुक बैक इट रिफर्स अ इवेंट एक्शन दैट इज करंटली अनफिनिश्ड। ये जो है फ्यूचर में अनफिनिश्ड की बात कर रहा है, काम जो है लगातार चल रहा होगा इसकी बात कर रहा है, बट विल बी फिनिश्ड एट सम फ्यूचर टाइम। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आगे आने वाले समय में ये जल्दी फिनिश हो जाएगा। इट मोस्ट ऑफन यूज्ड विद अ टाइम एक्सप्रेशन, जैसे कि आई विल हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूँगा फॉर 3 hours से बाय 6 o'clock। यहाँ पर भी वो चीज आपको मिल जा रही है, पॉइंट ऑफ टाइम और जो है पीरियड ऑफ टाइम। जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी वहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो है 3 hours की बात आई है इसलिए फॉर का इस्तेमाल किया गया है। आगे जो है देख लेते हैं, किसी में शायद सिंस वाला हम इसमें डालना भूल गए, लेकिन ये जान लीजिए अगर यहाँ पर जो है बजे डे होता, डेट होता और कोई पर्टिकुलर टाइम होता तो उसको उसके पहले जो है हम सिंस का प्रयोग करते, ना कि फॉर का प्रयोग करते। When I come at 8 will you have been participating long। The future perfect continuous is composed of 2 elements। कौन कौन से हैं? The future perfect the verb to be, मतलब to be का कौन सी आएगी? will have been आएगी प्लस the present participle of the main verb base form plus ing form प्लस जो है time denoting word like for since आगे time। जैसे कि आई विल हैव बीन प्लेइंग तो जनरली है आगे टाइम फॉर सिंस से भी आपको जुड़ा हुआ मिल सकता है। तो इस तरह से जो है हमने आज फ्यूचर के चारों टेंस की बात करी। एक क्विक रिवीजन, सबसे पहले जो है हमने सिंपल प्रेजेंट की बात करी। सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों ने ये लगभग 9 कंडीशंस ऐसी बात जानी जिसमें जो है सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। दूसरी चीज ये है कब कब प्रयोग होगा, जब कोई हमारे अनियंत्रित चीज दिखाई जा रही हो जो मेरे नियंत्रण में न हो कि वो होके ही रहेगी, वहां पर भी हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज कहां पर प्रयोग करेंगे, जब जो है कोई हम सोच रहे हो, मेरा कोई विचार हो और वो विचार जो है भविष्य में लेकर के हो, तो वैसी स्थिति में भी हम सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कुछ अगर आई थिंक आ जाए, आई एम श्योर आ जाए और आई एक्सपेक्ट आ जाए, प्रोबेबली आ जाए, आई बिलीव आ जाए,
तो ये समझ जाइए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कही जा रही है। दूसरा चीज एक क्या हमने बात करी थी, ये तो हो गया, ये तो स्ट्रक्चर है, जानते ही सब लोग। इंपॉर्टेंट में गोइंग टू का प्रयोग जो है हम, ये है तो कंटिन्यूअस की आईएनजी फॉर्म लगता है, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस देता है। लेकिन अगर नियर फ्यूचर की बात करा जा रहा है तो गोइंग टू इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वही चीज अगर जो है अगर प्लान्ड है और डिस्टेंस फ्यूचर की बात करी जा रही है तो सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे। और अगर सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी का कुछ बोध ही नहीं हो पा रहा है तो फिर विल का इस्तेमाल वहां पर हम कर सकते हैं। तो ये चीज सही, जैसे कि हमने कॉलेज ओपन्स, ये प्लान्ड है और डिस्टेंस में है, कोई फिक्स बिल्कुल नियर फ्यूचर नहीं है, तो ये सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर नीचे हमने देख लिया है प्रेजेंट का फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद जो है हमने जो है देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। फ्यूचर परफेक्ट, हाँ फ्यूचर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये तो रहे 4 टेंस। इसमें से बहुत सारी जानकारी आप लोगों को पहले से पता होगी, वो सिर्फ एज ए रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जानी, और हो सकता है कोई 2-4 पॉइंट आपको नए मिल गए हों, और नए भले न मिले, लेकिन जितनी चीजें हैं वही अगर बार बार चीजें दिमाग में घूमती रहेंगी तो आपके एग्जाम तक के वो ज्ञान, वो जानकारी पहुंचने में या वहां तक वो एमआर सीट पर नंबर्स में कन्वर्ट करने में आप लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। अब हम कुछ इस पे रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। जी सुन रहे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर, सर आ रही है। यस सर। चलिए, थैंक यू। व्हाट डज द सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस? जनरली क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, तुम पकड़ ले होंगे। क्या है? प्रेजेंट इवेंट, फ्यूचर इवेंट, पास्ट इवेंट्स, फ्यूचर इवेंट। future events. In which situations is the simple future tense used to express unwillingness? In which situation future tense used unwillingness? सर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। और भी साथी सुन रहे हैं, सब लोग हैं, जवाब दे सकते यस हैं। सर, यस सर। आप ही लोगों के लिए है। क्या कह रहा है? इन विच सिचुएशन इज द सिंपल फ्यूचर टेंस यूज टू एक्सप्रेस अनविलिंगनेस? अनविलिंगनेस जो है इंट्रोगेटिव में आएगा ना, इंट्रोगेटिव आएगा। जी बिल्कुल सर। ये उत्तर गलत लिखा है इसमें, इंट्रोगेटिव ही आएगा, गलत है। सर जी ऊपर पढ़ाया था तो निगेटिव सेंटेंस में आ रहा था सर जी, वो ये वाला अनविलिंगनेस वाला ऊपर दिया था सर, निगेटिव होगा सर इसका। अनविलिंगनेस की विलिंगनेस, एक मिनट रुकिए जरा। सर एक बार रीचेक कर लीजिए, मेरे को वही लग रहा था तभी। एक मिनट जरा देख लेते हैं। निगेटिव भी था तो ये नहीं पता कहाँ पे। हाँ निगेटिव ही है, निगेटिव है सर। निगेटिव है, निगेटिव है, सही हाँ है। मतलब नॉट उसमें आता है ना, मतलब ये है। हाँ हाँ हाँ, सही अब एकदम याद आ गया जब आंसर देखा। सही है, निगेटिव सही है। अच्छा मुझे लगा बिल का वाला है, सही है, निगेटिव यही। अगला है when she shall mainly use, when she shall mainly use with I and we in the interrogative form. To make suggestion, offer, necessity, इन सब चीजों को हम इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। कौन सा हो C. सकता है? सी हो C. सकता है। सी हो To सकता है, make suggestion or offer. सही। Which certain with contraction represent I will, I will का Sir, शॉर्ट A. फॉर्म क्या होगा? सर ए। ये होगा आई विल, ए। ठीक है। Yes. When do we use the going to form in the future tense? When do we use the going to form the future tense? कब? C. When we decided to something before talking about it. यही हो सकता है। एक्सप्रेस सर्टेनली तो होगा नहीं, तो फ्यूचर में चला जाएगा।
सी ही होगा, सही, सी ही होगा। Decided to do something. In future continuous tense, when is it used to ask politely or information about future? जब हम जो है कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो या गेस कर रहे हो, सो सी फोरटेलिंग के साथ, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। पूछ रहे हो पार्टी में वो आएगा नहीं आएगा ना, वही वाला है। वही, सी ऑप्शन। D. Predicting or guessing about future. फ्यूचर What are the two elements that make up the future continuous tense? सर डी। Hmm? नहीं, ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। Will. A. नहीं, लेकिन ये इसमें पास्ट ए पार्टिसिपल थोड़ी होता है। हाँ, पार्ट्स तो नहीं, नहीं नहीं। होगा ना, सब में पास दिया है ना, केवल डी में है आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस के वैसे चक्कर तो में ना। वर्ब प्लस आईएनजी होता है। सर तो ये कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी जाएगी, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसी में होगा आईएनजी। इसमें दिया नहीं है कुछ भी, इसमें स्ट्रक्चर और दिया सर नहीं है ये इसका। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाए तो ये परफेक्ट का हो गया ना, हैव बीन कॉन्टिन्यूअस। विल प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। विल बी। ये आपको जो है अगर आईएनजी इसको लगा दीजिए तो आपका ये सही तो हो सही सकता है। सर, तो ये ऑप्शन सही क्या सर विल बी होती है। विल बी। विल बी शैल बी प्लस आईएनजी होना चाहिए। फिर बिल भी होना चाहिए इसमें, इसमें कुछ भी यस है सर, नहीं विल सही, बी प्लस प्रेजेंट ये पार्टिसिपल। गड़बड़ है। या तो फिर ऊपर प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही फ्यूचर कंटिन्यूअस देख पूछ लिया। रहा है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। क्यों? डी का ही है, बी हटा के बी लगा दीजिए, हो जाएगा। हाँ वैसा कर सकते हैं। बिल बेस फॉर्म, प्लस सर बेस फॉर्म में बी, आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। आईएनजी फॉर्म बेस तो फॉर्म वर्ब में की आईएनजी ये फर्स्ट फॉर्म। होगा। बेस फॉर्म में आईएनजी थोड़ी आती है, बेस फॉर्म प्लस आईएनजी इसके पहले बी, ये सही होगा ना? राइट राइट। यस सर। ये सही है। What does the future perfect tense refer to? Unfinished action, event or future? Unfinished actions or Complete events in the action. future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिए। और परफेक्ट जब कर रहा है तो परफेक्ट मतलब पूर्ण होता ही है, वैसे ही तुरंत पकड़ लीजिए। कंप्लीट एक्शन इन हाँ, फ्यूचर, नंबर। बी अब समझ जाएगा। Which tense is used to project forward in time and look back at event action are currently unfinished but will be finished at some future? अभी लास्ट में हमने इसी पे बात करी है ना, लास्ट में इसी पे बात करी है। अभी फिर चल रहा है फ्यूचर परफेक्ट और अनफिनिश्ड है, हाँ, और भविष्य में फिनिश्ड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा ये वाला, है ना? यही होगा। What are the two elements that make up the future perfect continuous tense? सर ए। Will have been present participle, यही है, यही होगा। फर्स्ट। ये ऑप्शन इसका सही होगा। ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, तो ये जो टेक्स्ट आपका पढ़ाया गया है ऊपर, ये सिर्फ उसी पे बेस्ड है। ये इसलिए प्रश्न बनाए गए हैं कि आपने जो ऊपर पढ़ा है उसकी समझ आपको कितनी आई है। तो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाने का एक तरीका है। बाकी आज जो है हमारा फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट तीनों टेंस कंप्लीट होते हैं, और मंडे में
आज सैटरडे है ना, क्यों? सैटरडे ही तो है। जी सैटरडे Yes, सर। सैटरडे, तो इस पे एक टेस्ट होना है आपका, मिनिमम 25 क्वेश्चन से और मैक्सिमम 50 क्वेश्चन का। तो संडे में करा देंगे, मंडे में करा देंगे? तो संडे में Sunday. करा दीजिए। संडे में हाँ करा दें? विनय। हाँ, यस सर। Yes, sir. संडे में संडे करा में दो सब लोग एग्री? संडे में। मंडे में मंडे में तो और ही टेस्ट हो जाते हैं सर। इसको एक्स्ट्रा टाइम में रहने दो सर, संडे में ही रहने दो इसको। चलिए तो फिर कल ही मिल जाएगा। कल आपको 9 बजे टेस्ट मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा और टेंस पे ही होगा। सर लास्ट टाइम क्या रहेगा सर? लास्ट टाइम 9 बजे से शाम को 7 बजे तक। ओके सर। इसके बीच में कभी भी आप जो है कर सकते हैं उसको, ठीक है। और इसी तैयारी जोन के क्लासरूम पे जो है वो आपको पब्लिश हो जाएगा, उसको करिए आराम से। टेंस का अपना ज्ञान जो है पूरा आप रखिए, एवेल्यूट करिए। वहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर आपके नॉलेज ओरिएंटेड है, वहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चीज ये भी हाँ सर अगर जैसे थोड़ी सी क्लास छूट जाती है कहीं बाय द वे, थोड़ा सा मतलब लेट हो गए, सर इसको कैसे दोबारा देखें? रिकॉर्डिंग तो हम वो आपको भेज दे रहे हैं यूट्यूब पे, उस पे गूगल उस पे ग्रुप पे आपके डेली के डेली जो रिकॉर्डिंग जा रही है हमारी, यही तो जा रही है। ओके ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, वो डेली ग्रुप पे जो है आप देखिए, नीले कलर का जो टेम्पलेट लगा हुआ है 5 PM डेली, वही तो यस है। सर। तो सर अभी थैंक यू इसके सर। बाद शाम तक के आ जाएगी उसमें, तो आप जो इनका छूट जा रहा है वहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज यस एक और सर। बता दूं, मैं थोड़ा अनुशासन के मामले में स्ट्रिक्ट हूँ। आप लोगों की अटेंडेंस ऑन है, जितने लगातार लोग जुड़ रहे हैं, इवन जितनी देर तक जुड़ रहे हैं, कोई झांक के अगर लौट गया है, 2 मिनट के लिए जुड़ा है चला गया, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है, टीचमेंट वाले दे देते हैं कि फला कैंडिडेट 2 मिनट के लिए रुका चला गया, फला कैंडिडेट पूरा सेशन ज्वाइन किया चला गया तब गया। तो लगातार जो जुड़ रहे हैं, एक्टिव साथी हैं, आगे आने वाले समय में पूरी जो है ये हम भीड़ नहीं लेके चलने वाले हैं। जो साथी लगातार जुड़ रहे हैं, एक्टिव हैं, सक्रिय रहेंगे, उन डेडिकेटेड साथियों के साथ में एक न्यू क्लासरूम बना के हम लोग उनके साथ पढ़ाई करेंगे। हम अनडिसिप्लिन्ड लोगों के साथ में न रहे हैं कभी और न हम किसी को रखेंगे। तो अगर लगातार जुड़ना चाहते हैं तो डिसिप्लिन में रहिए आप लोग, ताकि जो है यहाँ से फायदा मिल जाए आपको भी, हम भी अपने मिशन में कामयाब हों। हमारा मिशन सुपर 30 का रखा है हमने, कम से कम सुपर 30 हमारे सेलेक्ट हो जाए आगे आने वाले एग्जाम में। उसमें शामिल होना चाहते हैं तो फिर डिसिप्लिन रहिए। और बिना Yes, बताए sir. गायब हो रहा है 4 लोग, 4 दिन तक 5 दिन के बाद आके ज्वाइन कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ी नहीं बन रही है, बट रही है आम आदमी पार्टी की, है ना। चुनावी समर इसको न समझें कि वोट लेना है किसी को। डिसिप्लिन में रहें तभी चीजें संभव हैं। हाँ, कोऑपरेट करते रहें, नॉलेज को बढ़ाते रहें। कल 9 बजे मिल जाएगा आप सही। लोगों को। मिलते हैं शाम को जी। 7:15 पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल। गुड इवनिंग सर।